Nothing in this entire world can beat the taste of tawa fried smoky patla chowmein. So Durga Puja is here, and in Kolkata it isn't just about pandals, it's about street food, and I have got you covered. Here are my top 12 must try street foods during Durga Puja. Whether you're hopping from pandal to pandal or just want to eat like a local, these are the bites you cannot miss. So let's dive in. My number one pick will always be puchka. Very sweet lady, she is serving amazing puchka. बहुत भीड़ है यहाँ, बहुत मुश्किल से मेरे को लाइन मिला. मैं 2-3 बार राउंड लगा के अभी आई हूँ. पुचका वहाँ बन रहा है, शी इज मेकिंग इट, नाउ शी विल सर्व अस. आई एम सुपर एक्साइटेड. हाउएवर यहाँ पे आपको दही बड़ा भी मिल जाएगा, दही पुचका भी मिल जाएगा, चुरमुर भी मिल जाएगा, जैन पुचका भी मिल जाएगा. बट आई विल जस्ट ईट पुचका एंड आलू दम up here. शी इज मेकिंग आलू राइट नाउ. Oh, she added tetule jol at the back. मैं आपको दिखा नहीं सकती. Behind the scene, she has added good tetule jol and masala and dhoner gudo and everything. And now this is नींबू. And guys, जब भी जरा पेशेंस से खड़ा रहना, लाइन से आराम से खाओ, आराम से खड़े होके वेट करके, कोई हड़बड़ी नहीं. टेक योर टाइम एंड ईट. তুমি 60 বছর থেকে এখানে বসছো? 10 বছর বয়স. হ্যাঁ, তো তোমার 70 এখন তো 60 বছর. এর আগে আপনার বাবা চালাতেন? দাদা. আমার ছেলেরা. She's 70 years and this shop is more than 100 years old. 20 का 3. 20 का 3. We are getting into her shop completely. Can't control our low. That smell is giving me this. बिना झाल. बिना झाल. झाल. Must try. The water is to die for. ठंडा है and बहुत ज़्यादा extreme खट्टा नहीं है. It's very balanced. The aloo is also very mild, very nice. The most important, the puchkas are very khasta, kurkura, not soggy. I think after ages I'm eating. I was planning to come to this side from such a long time. Finally tick. You know the best part, how you should enjoy this puchka, just take the entire puchka in your mouth and then close your mouth and then chew it properly with using your tongue and teeth. You get the good flavors. The aloo, chana, matar, everything is apt. So this is my last piece. I'm super happy and satisfied eating here. Of course, how can any street food list be complete without momos? Soft steaming dumplings bursting with flavors, served with that fiery red chutney that Kolkata loves. Whether steamed or fried, they are a Pujo crowd favorite you just can't skip. Oh, this is so beautiful, I can't tell you. And very neat also, very clean, very hygienic. So you get 6 pieces of momo, you get 1 peanut spicy chutney, mayonnaise and amazing brothy soup. ये soup मैंने अभी बनते हुए देखा है. And you know, all the bones and everything has been dropped into the soup and वो boil होते जा रहा है. And there's coriander and a sprinkle of black pepper. Let's sip onto the soup. Oh, there's lemon juice also. नींबू भी निचोड़ा हुआ है, बहुत टेस्टी लग रहा है. आजकल तो लोग मोमो में सूप देना भूल ही गए हैं. Only at street places you will get soup. Otherwise, बहुत गर्म है यार. अभी जस्ट निकाला है स्टीमर से. बहुत गर्म है. हाथ जल गया. जूसी हाथ में जूस निकला. Wow, so good. Very nice momo. Bittu bhai is gonna love it. The chutney is really good. It's like basically the spicy peanut chutney जो authentic नेपाली चटनी है ना, एकदम वही वाला चटनी. और आप देख सकते हैं ये जो लेयर इतना वॉबली हो रहा है, इसका मतलब ये जब मैं इसको तोड़ूंगी ना, इसमें से बहुत जूस निकलेगा. वेट, इफ आई कैन एक्चुअली शो यू. अरे इसका तो चिकन ही निकल गया. It's worth traveling so far to eat this. The sheet is also very light and patla, perfect filling. The chutney is to die for, and the soup is like cherry on the cake. सिर्फ मेयोनीज मुझे नहीं पसंद मोमो में, I don't like, but maybe people prefer. मेयोनीज के अलावा it's a 10 on 10, very nice. And of course, a Kolkata classic, kathi rolls, soft paratha, juicy kebabs and sauces rolled to perfection. So for my next part, I've come to this age-old legendary outlet Nizam. यहाँ का roll खाने. However, I've had roll of many places in Kolkata, but I was not aware that Nizam
is #1 places when it comes to eating काठी रोल in कोलकाता। यहाँ पर मैंने मंगवाया है डबल एग चिकन काठी रोल। या द पराठा लुक्स वेरी डिफरेंट। जो नॉर्मली हम रोल में खाते हैं लच्छा पराठा, ये वो नहीं है, ये नॉर्मल जो डोई पराठा होता है ना वैसा है। देयर इज एन एग ऑमलेट, big chunks of chicken tikka and onion and green chilies and कुछ नहीं, salt and black pepper and I think dash of squeezed lemon juice। I love लच्छादार पराठा वाला रोल। ठीक है, चलिए ये अगर फेमस है तो कुछ रीजन से ही होगा, खा के देखते हैं। The paratha is very cloudy and soft and spongy. This is giving me the vibe of Bengali roll, Bengali paratha। बट बचपन में जब हम लोग अपने एरिया के दुकान से, आसपास के दुकान से जब रोल चाउमीन मंगा के खाते थे ना, तो वो रोल ऐसा होता है जो एरिया के दुकान में। So this is giving me that nostalgic feeling. So yeah, it tastes good. The paratha tastes good. It has a really basic flavors, like it's a doughy, salty, little tangy, and the chicken meat is very, very, very juicy and meaty, flavorful. So paratha बहुत bland taste कर रहा है, like less flavors, but the chicken tikka has a good flavor. So infusion is very light. I can't say very चटपटा क्योंकि इसके अंदर कोई sauce नहीं है. No ketchup, no chili sauce, but still tasting good. The chicken kebab and the egg roll is the game changer. Complete taste changer of the roll. Very nice. मिर्ची का क्रंच भी आया, बहुत मज़ा लग रहा है. Let me try to get a bite of the entire content. That green chili taste and the onion, oh, very good. The taste of the cloudy egg is fabulous. This is fabulous. In fact, the paratha, अंडा और onion ही से बहुत अच्छा लग रहा है खाने में. Oh my God, heavy hiccups. Don't miss Mughlai paratha too, because these are stuffed with minced meat and eggs, and this is comfort food at its finest. So story एक ऐसी है कि my office was in Nonapukur, so I always used to pass through। उस टाइम पे I used to go from bus। यहाँ पर हमेशा बस का स्टॉप है, एकदम मेन रोड पे ही वाला, और हमेशा मैं बस का ना खिड़की से देखती थी। This is the only place where एक तो I always say that Mughlai paratha is one dish which is actually going vanishing। मतलब हर जगह आपको मिलता नहीं, आपको खाने के लिए इसको ऑल द वे साउथ कोलकाता या नॉर्थ कोलकाता जाना पड़ेगा। It is one of the iconic and legit डिश है जो आई डोंट वांट, हर जगह नहीं मिलता आपको, और अच्छा भी नहीं मिलता, और हर जगह पहले बात मिलता भी नहीं है। दिस इज वन स्पॉट विच इज फेमस फॉर मुगलाई पराठा, बिकॉज आई टेल यू व्हाई। जब भी मैं बस से जाती थी ना, आई ऑलवेज यूज्ड टू थिंक बैक टू बैक मुगलाई पराठा बनता ही रहता था। एंड आई डिसाइडेड दैट आई विल बी डूइंग दिस। केबिन रेस्टोरेंट्स, आई हैड टू कम टू दिस प्लेस टू ट्राई आउट द मुगलाई पराठा। ना यहाँ पर हमने लिया है डबल एग मुगलाई पराठा। आप अगर चाहो तो नॉनवेज भी ले सकते हो, जिसके अंदर चिकन भी रहता है। अभी इसके अंदर चिकन है कि नहीं, आई डोंट नो। ओके, अंडा वाला। अगर आप चाहो तो चिकन वाला भी ले सकते हो। नाउ दिस इज बेसिकली, आपको विश्वास नहीं होगा, इंडोनेशिया में एक डिश है मार्टबक और समथिंग, वो यही वर्जन इंडोनेशिया में चला गया, स्ट्रीट फूड पे इतना मिलता है। एंड दिस इज आवर पर्टिकुलर डिश मुगलाई पराठा, जिसके साथ आपको मिलता है आलू तड़करी, केचप, कोई काशुंदी भी देता है, एंड प्याज। एंड हाउएवर इट इज बीइंग फ्राइड, कंप्लीटली डीप फ्राइड इन ऑल, बट द फ्लेवर्स एंड द इमोशन, द नॉस्टैल्जिया अटैच्ड टू इट इज अमेजिंग। आई हैव सीन दिस मेनी अ टाइम्स। बस से कभी उतर के खाने का मौका नहीं मिला उस टाइम पे, बट टुडे आई एम हियर टू ट्राई आउट एंड आई एम सुपर एक्साइटेड टू ट्राई, बिकॉज आई हैव हर्ड कि इनका मुगलाई पराठा इज वेरी गुड, बहुत थिन होता है एंड लेस ऑयली, मतलब बहुत ड्राई एंड गुड होता है। सो लेट्स ट्राई। एक पीस ऑलरेडी प्राची ले चुकी है, सो दे गिव यू इन दिस पीसेस, ऐसे स्लाइस करके देते हैं। एंड दिस इज हाउ द परोटा लुक्स। आज जैसे मैंने बोला, थिन लेयर ऑफ मैदा रहता है, तो इट्स वेरी क्रिस्पी थिन, एंड अंदर फुल स्टफिंग भरती है अंडा का, एंड प्याज एंड ऑल दिया हुआ है, एंड मिर्ची वगैरह, गाजर भी थोड़ा सा है। लुक्स अमेजिंग, फैबुलस। सो द राइट वे टू ईट इज ये लो, इसके साथ थोड़ा सब्जी लो, आलू तरकारी, प्याज, एंड लेट्स डिग इन। जैसे मैंने बोला ना, बहुत पतला नहीं तो बहुत सारी जगह पे क्या मुगलाई पराठा का पराठा बहुत मोटा कर देता है, एंड फिलिंग बहुत कम रहता है, बट दिस इज सो गुड, सो गुड। दिस इज द बेस्ट प्लेस एंड दिस इज द ओनली गुड प्लेस टू ईट मुगलाई पराठा इन कोलकाता। नाउ अगर आप चाहो तो इसमें चिकन भी ऐड करा सकते हो, वो और टेस्टी लगता है खाने में। आलू तरकारी था ना, जिंजर वाला आलू तरकारी है, ओनली आधा आलू तरकारी, ये भी लगता कहते हैं छोला टोला शब्द आवाज है आलू तरकारी का। लवली लवली। लास्ट वीडियो में लोगों को बहुत अच्छा लगा था, आप लोग जापानीज में किया था ना, ये भी कहते हैं। सामने गर्मा गर्म बन रहा है, कानूना गर्म दे रहा है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। Whenever you are in Kolkata, you come here, you try it, you'll thanks me tons of time because this is super tasty. मुगलाई पराठा मम्मी का बहुत फेवरेट है, मम्मी को बहुत पसंद है मुगलाई पराठा। बस अंडा वंडा दिया हुआ है।
From some crispy fried delights, I highly recommend you to try some tele bhaja. From beguni to aloo chop to fuluri, these are Pujo essentials. मैं आई हूँ to this 59 years old Kalika, which is a tele bhaja shop. Now Bengali में tele bhaja bhuji is very famous. It's a famous street snack like cutlet, fish fry, fish finger, demet devil and lot more. यहाँ पर मैं ले रही हूँ सबसे पहला फिश रोल विच इज़ फॉर 100 रुपीज़ एंड आई मस्ट टेल यू आई एम सो इम्प्रेस्ड विद द फर्स्ट break of the bite. It is so nice. It is quite loaded. बाहर फिलेट है, फिलेट के अंदर एक मसाला रोल करके फिर इसका फिश रोल बनाया हुआ है विच इज़ नाइस. एंड एज यूजुअल आवर बंगाली भाजा भूजी इज़ वेरी इनकम्प्लीट विदाउट काशुंदी एंड सैलेड. सो इधर है काशुंदी विच इज़ मस्टर्ड सॉस एंड शौशा, प्याज, गाजर. लेट्स टेक इट. It's really good. It's so loaded, so well stuffed, and this is smelling so good, so delicious and tasting so flavorful, masaledar. It is a very nice punch of Bengali flavors inside. Bahar crusty है, not too much oily. Tele bhaja tends to be very teliya, but ये बिल्कुल नहीं है, crusty है, बाहर सूखा. And with the kashondi, it is a very nice punch of flavors, like sharp flavors. It's a माछर fillet, और माछका ने जो filling है ना, उसके अंदर भी मछली का marination है. Very nice, very nice. Okay, nice. जैसे ये फिलेट टूटा, इट्स गुड फिलिंग. कैप्सिकम दिख रहा है, धनिया पत्ता दिख रहा है, मिर्ची दिख रहा है. आई मीन लाइक वाओ, दिस इज सो इम्प्रेसिव. लाइक दिस इज अ काइंड ऑफ कटलेट आई हैव नेवर हैड बिफोर. इट्स स्मेलिंग सो ब्यूटीफुल. धनिया पत्ता और मिर्ची का स्मेल आ रहा है इसमें से. वाओ, परफेक्ट यार, दिस इज सो गुड. वेरी नाइस. मस्ट ट्राई. भाई कटलेट तो नहीं डिफरेंट. इनमें फिलेट दाई नहीं है, मैरिनेट मैंने मिन्स चिकन को मिन्स करके उसके अंदर स्टफिंग डाल के, जैसे मीट बॉल नहीं होता वैसे स्टफिंग डाल के फिर इसका कटलेट बनाया. सो इट्स क्वाइट फ्लेवरफुल. नॉर्मली क्या होता है ना, फिलेट डालता है, ब्रेस्ट पीस डाल देता है, सो क्या बहुत ब्लैंड रहता है बहुत टाइम. बट दिस इज़ वेरी नाइस. चिकन इज़ वेरी वेल स्टफ्ड एंड नॉट दैट दे आर चार्जिंग वेरी मच. इट्स क्वाइट रीजनेबली प्राइस्ड हियर. If you want a breakfast style street snack, then go for Kochuri Aloo Dum. Hot, fluffy and spicy. First, I have came to this 150-year-old sweet shop Puti Ram. This place is famous for their luchi dal early in the morning, which is a famous Bengali breakfast. How's the puri and dal? कितना पुराना है पता है? कितना पुराना है पता? फ्रेश नहीं बना है. हाँ, अरे पूरी नहीं दुकान कितना बड़ा है. Finally, I'm here at Puti Ram. I've seen so many videos of people eating at here. It's a 150-year-old place serving some delicious. I think this is dal puri and this is chana का दाल, छोला दाल जटा वाले मिष्टी छोला दाल. And ये शाम को अभी आलू दम मिल रहा है ना. इनका जो सुबह जो पूरी लूची मिलता है वो अलग है. ये राधा बोलू भी अभी अभी शाम को मिल रहा है. पूरी जो है सुबह 10 बजे से लेके 12 बजे तक ही मिलेगा. तो अगर आपको वो खाना तो आपको सुबह आना पड़ेगा. तो हम लोग ये नहीं खा पाए, बट ठीक है, लेट्स ट्राई दिस. कैमरामैन पहले ही खा चुके हैं, बच्चा लोग पूरा भर चुका है. कॉलेज एरिया है, सो इट्स कम्प्लीटली पैक्ड, पूरा घी हो रहा है. So it's a doughy savory puri with मीठा चना का दाल which tastes super yum. I love this. It's a very simple dish, very nice. आलूदम ठंडा है. हाँ, आलूदम ठंडा है. It's creamy यार. ग्रेवी देख के ही लग रहा है क्रीमी. It's a simple जीरा अदरक देके आलू का करी. It's spicy, mild spicy and sweet. So what happens in our Bengali preparation ना, मम्मी लोग हर चीज़ में थोड़ा सा चीनी बाद में लास्ट में डालती है, which adds a very nice flavor, which really enhances the taste of the spiciness also. All the spicy flavors को लास्ट में थोड़ा चीनी डालती है बैलेंस करने के लिए. तो वो बैलेंस वाला चीनी का टेस्ट बहुत अच्छा लग रहा है. You let me know in the comment section आपको कैसा लगता है. मेरे को तो बहुत अच्छा लगा. For something light but crunchy, my top pick will always be jhalmuri. And I've traveled all the way to Prinsep Ghat to try Ghoti Garam. When in Kolkata, you have to try Ghoti Garam. इसमें जो कटा हुआ मिर्ची, कैरेट और वो जो आम पड़ता है ना, आमड़ा, that is yum. I love this. However, बारिश में खाने का मजा इसका और दुगना बढ़ जाता है. So yeah, cheers. Oh, इसमें बहुत कुछ दिया हुआ है. आमड़ा तो है, प्याज है, घोटी है, बादाम है, lot of stuff. हाँ, nice.
चटपटा फ्लेवरफुल. I love this ramshi. आमला का जब खट्टा खट्टा टेस्ट आता है ना, that's fab. And for seafood lovers, make sure you try fish fry and Kobiraji cutlets. Crispy, juicy, and those are iconic Kolkata eats. Diamond fish fry, butter fish fry, prawn Kobiraji দুটো আর একটা চিকেন কাটলেট. থামস আপ আছে? দাও না, কাঁচের বোতল তিনটে দিয়ে দাও. লাইক আমাদের ভালোবাসা, that is the cutlet, the fish fry. मतलब ये आपको बंगाली जितना भी অনুষ্ঠান होता है, लाइक বিয়ে বাড়ি থেকে নিয়ে অন্নপ্রাশন থেকে নিয়ে সব কিছুতে কাটলেট, fish fry, Kobiraji ये सब बनेगा. Okay, so I'm super excited to try out. So the fish Kobiraji looks amazing. हाँ, I just hope ये फुग्गा ना निकल जाए कि बाहर ऑमलेट है पूरा एग और अंदर नहीं. This is the prawn Kobiraji I think I got. So सबसे पहले we'll eat this only. Wow, this is nice रे. Good quality fish दिए है. You have to see. I don't know कैसे है. So this is the fish. मतलब भालो चिंगड़ी दिए है. यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, दोनों साइड में. So this is the cutlet नीचे और फिर उसको रैप किया गया है अंडा का क्लाउडी फ्लेक्स के साथ. Looks very good. इसके साथ we have to take काशुंदी. जैसे चाइनीज रेस्टोरेंट में होता है ना, चिली सॉस एंड ऑल, तो इन लोगों का काशुंदी दिया हुआ है. ये तो सिर्फ एक साइड का है और भी पूरा भरती है, विच इज़ नाइस. आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विद द अमाउंट ऑफ प्रॉन दे हैव गिवन इन दिस. वेरी नाइस विद द काशुंदी. लेट्स टेक इन. प्रॉन टाइट है वो क्यों पता नहीं. बट दिस अगेन एज ओल्ड, सेंचुरी ओल्ड प्लेस, आइकॉनिक स्पॉट, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर केबिन रेस्टोरेंट. लास्ट वीडियो में मिस हो गया था बोल के. आई हैव कम हियर टू कवर. फूड इज गुड. ये नॉर्मली फ्लेक्स होता है ना, बहुत ऑयली होता है, बट दिस इज परफेक्टली मेड एंड दिस इज मेड ऑफ अंडा. And this you only get in Kolkata. It's basically an art. You know, Bengal is famous for art. You can see it in the plate as well. तो खाने में मसालेदार, मिर्ची, गार्लिक, जिंजर, उसका भी बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है पेस्ट का. मिर्ची, गार्लिक, जिंजर का पेस्ट, काचा लौंगा, आदा, रोशो. না ডায়মন্ড ফিশ ফ্রাই ইজ ভেরি ফেভারিট অফ আস. যখনও বিয়ে বাড়ি হয়, কোনো ওকেশন হয় আমাদের, অ্যান্ড লুক এট দ্য ফিলেট ব্রো, দিস ইজ সো গুড. দ্য ফিলেট ইজ সো ইমপ্রেসিভ. আই লাভ ইট. I love it. It's worth visiting here. So good. Lovely. Let's take it with the kashundi. খুব ভালো খেতে यार. Very ভালো. Very ভালো. How do you know the difference between basa and भेटकी? भेटकी में I think वो fishy smell बहुत ज़्यादा आता है और बासा में वो नहीं आता. So I am little skeptical whether this is basa or भेटकी, but जो भी है बहुत tasty है, flavorful है. Whenever I eat good food ना, I get confused with the language, how to describe it. मतलब आप लोग समझ जाओगे it's very tasty. आप देख के समझ सकते हो ना. This is butter fish fry. ये बहुत ज़्यादा शादी बाड़ी में बनता है. আমার মা বাড়ি যখন কোনো ওকেশন হয় না, बटर फिश फ्राई इज अ मस्ट. ये तो फिर भी इन लोगों का थोड़ा ब्राउन कलर हो गया है. अदरवाइज मेरे मामा बाड़ी की जब होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा क्लाउड, कैसे बताऊँ, अर्थी कलर का होता है, येलोइश कलर. तो फिश फ्राई इज सो गुड. तो दोनों में बहुत फ़र्क ये है बटर फिश फ्राई का कि ये आपको जैसे बैंगनी होता है ना, वैसा इसका बाहर का लेयर होता है और उसमें जो होता है ना, वो पैनको क्रस्ट वाला फिलिंग होता है. मोस्टली पीपल प्रेफर दिस क्योंकि बाहर का लेयर बहुत पतला होता है एंड फिश फिलेट बहुत ज़्यादा मिलता है. जैसे आप देख सकते हैं इसमें इतना मोटा फिश फिले मिला. क्या धुआं निकल रहा है, मस्त. एंड विथ काशुंदी एवरीथिंग टेस्ट super bhalobasha. I think this is good. More than the diamond fish fry, I love this one. The kind of fish fillet, heavy fish, heavy jaksa. If Indo-Chinese is your vibe, then my Pujo recommendation will be forever chow mein and chili chicken. Fiery, greasy and oh so good. कितना? जो 60 টাকা আর 120 টাকা. 120. This is the classic street food in Kolkata. Street style चाउमीन जो आपको कोलकाता में मिलेगा, ये पतला नूडल्स वाला. और ये चाउमीन खाने के लिए आपको ना ये ऑफिशियल एरिया में आना पड़ेगा. मैं भी सेक्टर 5 में आई हूँ, बेंच मार्केट के अपोजिट पहला वाला स्टॉल. मैं ना जब यहाँ पर BPO में काम करती थी तब मैं यहाँ पर, तब भी मैं यहाँ चाउमीन, मोमो, रोल ये सब खाती थी. तो बेस्ट पार्ट यहाँ पर चिली चिकन है. आप चाउमीन के साथ कॉम्बो में ले सकते हो. चिली चिकन, बड़ो चिली चिकन. दिस इज द इंडो चाइनीज मील. चाउमीन, प्याज, शोशा एंड लौंगा. एंड आप देखे तो इतने अच्छे से भैया ना वॉक टॉस करके इसको बनाया. लुक्स स्क्रम्शियसली डिलीशियस. नाउ लेट्स डिग इन विद द प्याज एंड शोशा. व्हेन इन कोलकाता यू हैव टू ईट दिस स्ट्रीट फूड. Nothing in this entire world can beat the taste of tawa fried smoky patla chow mein.
वाओ, आई लाइक क्लासिक एग चाउमीन, टेस्ट सो गुड। द बेस्ट पार्ट, इन्होंने ना कुछ सॉस और मसाले डाल के तो नूडल्स को ना बहुत अच्छे से वॉक टॉस किया है। तो हर एक नूडल्स के स्ट्रैंड्स में ना फ्लेवर्स बहुत अच्छे से घुस गया है, बहुत अच्छा लग रहा है। और इसका मज़ा ना बिग बाइट में ही आता है। तेल, नमक, मिर्ची, ठंडा, सबका टेस्ट आ जाए। अच्छा लौंका, चिली चिकन में भी लौंका। In Bengal we love our lonka. I think in the entire India everyone loves lonka. मीठा है, सोया सॉस बहुत ज़्यादा है, अरारोट है, थोड़ा लेस प्रेफरेबल है मेरे को ये वाला चिली चिकन। चाउमीन इज़ गुड, ये बहुत सॉलिड पीस ऑफ चिकन होता है, ये मेरे को खाया नहीं जाता है। चिली चिकन ठंडा बड़ा अच्छा लग रहा है, स्टार्टर की तरह। And for a hearty feeling meal during Pujo, you must try Rumali Roti with mutton tikya. It's a classic Kolkata street food combo. Actor Rumali Roti, actor mutton chop. Dukandar is not there to give us the food. I want to eat food. However, ये गर्मा गर्म mutton chop बनते देख बहुत अच्छा लग रहा है. And this place also I'm seeing for the last 20-25 years while passing through. आज मैंने सोचा है सब जगह खा लूंगी. So अभी हम लोग लेने वाले एक piece mutton chop that goes really well with Rumali Roti. And the chop and Rumali Roti, it's a legit Bengali combination. And I love it. So rumali roti and the chop looks very good. So basically बेसन और मटन कीमा से ये चाप बनाया जाता है और ये मुगल मसाले डाल के लाइक इत्तर वित्तर डाल के प्याज लहसुन का पेस्ट मिर्ची का पेस्ट डाल के बनाया जाता है। सुपर टेस्टी, सुपर गुड। They have added badam also in it. And ये एक ऐसा डिश है ना, इसको खाने के लिए you have to come to North Kolkata side. You'll not get it anywhere in Kolkata. I love this. ये वाला मटन चाप बहुत टेस्टी है यार, गर्मा गर्म बन रहा था, पाइपिंग हॉट, लुक्स स्क्रम्शियसली डिलीशियस। इसके साथ लेते हैं सैलेड। गिर गया। हाँ, the masala looks rich, but this is not exactly rich. Very flavorful, very nice. And because I've added बेसन to it, इसमें ना वो ग्रेवी में बहुत अच्छा थिकनेस आ गया है। फैब। इतना आवाज है, मैं कैसे शूट करूँ मेरे को ही पता है, बहुत आवाज है। मतलब मेरा माइक में क्या रिकॉर्ड हो रहा होगा भगवान जाने। কত বছর হয়েছে? আমি 20 বছর ধরে দেখছি, খুব ভালো খেতে। And after all that spice, you have got to try some sweet. I am at this legendary sweet shop, which is New Chaturbhuj Mishtana Bhandar, and this place is famous for their Sandesh and Mishti Doi, and it is giving me such nostalgia, पुरानो मिष्टी दुकान vibe. दूर से इतना अच्छा लग रहा है। I want to try this. Oh my God, there are so many sweets. Here I've taken one Sandesh, Kishmish है. This looks good to me. नॉर्मली संदेश क्या बहुत ड्राई हो जाता है, ये वैसा नहीं। दिस इज वेरी नाइस, लेस स्वीट। आजकल मेरे को इतना स्वीट क्रेविंग होता है तो मेरे को सब कुछ अच्छा लगता है। फ्रॉम इंडियन डेजर्ट टू इंटरनेशनल डेजर्ट, यू गिव मी एनीथिंग मीठा आई ईट। क्रीम रोल, मिष्टी क्रीम रोल भीतर चमचम दवाचे ऊपर ऐसे मलाई का कुछ रोल किया हुआ है, विच लुक्स क्वाइट गुड। लेट्स डिग इन। इट्स गुड बट संदेश वाज बेटर। नाउ द स्टार डिश जिसके लिए मैं यहाँ पर आई हूँ, विच इज द मिष्टी दोई। आप देखो बाहर कितना सुंदर लग रहा है, कलरफुल, गीला गीला, ठंडा ठंडा। ठंडी दही इज एवरीथिंग यू नीड फूड फैम। आई लव भाड़े दोई, स्वीट एंड हल्का टॉक। आई लव दिस, आई लव दोई, आई लव ये बंगाली दोई, भाड़े दोई। Finally, for the ultimate late night bite, don't miss street style biryani or kebab from street grills. रात को ना जब भूख लगता है ना, your appetite increases. Why so? Let me know in the comment. আচ্ছা এক প্লেট দিয়ে দাও চিকেন বিরিয়ানি। আলু থাকবে তো? ডিম থাকবে? ডিমও থাকবে। পেঁয়াজ লঙ্কা সব থাকবে। লেগ আছে, লেগ পিস। ভাত দিয়ে দাও, ওখান থেকে লেগ পিস দিয়ে দাও। লাভলি, থ্যাংক ইউ। গ্রেভিও আছে, হ্যাঁ দাও দাও। ও ওয়াও, দিস ইজ দ্য লেজেন্ড বিরিয়ানি she has served me। भात, there is अंडा, there is आलू एंड लेग पीस मैंने मांगा तो उन्होंने मेरे को करी का लेग पीस दिया, सैलेड है, लौंका, एंड शी इज आल्सो गिविंग मी मांसो, कषा मांसो जो है ना, मांसो झोल, दैट ग्रेवी, लेजिट कॉम्बिनेशन व्हेन इन कोलकाता। एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, आई लव आलू। आरो ग्रेवी दिलो।
Thank you so much. This is how they serve you. So प्यार से, like घर जैसा. So this is a legit combination I'm trying, and I love my biryani to be moist and gravy-licious. So let's try. आलू दिए भात, fabulous. चावल भी कितना अच्छा है, white, yellow and saffron color, looks amazing. Let's dig in. Honestly, I love this. Rice is so love forever, so much. आलू कितना अच्छा लग रहा है, मीठा मीठा. So ग्रेवी थोड़ी सी प्याज के वजह से मीठा है, and the मसाला is थोड़ा सा स्पाइसी. चावल बहुत अच्छे से दम लगा हुआ है, बहुत फ्लेवरफुल है, and आलू is मीठा. Entire combination with काचा लौंगा झाल fab. Normally क्या होता है, बिरयानी का जो चिकन होता है वो थोड़ा सा ब्लैंड होता है, but this is a leg piece of gravy chicken. So this is soft. Wow, nice यार. भाई चिकन का क्वालिटी बहुत अच्छा है. नॉर्मली स्ट्रीट फूड में आई एम लिटिल स्केप्टिकल, बट द फूड क्वालिटी इज वेरी गुड. आंख बंद करके यू कम हियर एंड ट्राई, यू लव इट. रात को टंगड़ी कबाब अभी कितना बज रहा है? 121 हो रहा है. द टंगड़ी कबाब लुक सो गुड. इसके साथ एक ठंडी ठंडी चटनी, धनिया पत्ता पुदीना की चटनी, स्क्वीज ऑफ लेमन. 1:30 बजे वी आर गेटिंग सच अमेजिंग फूड. लाइक आई लव इट. द टंगड़ी कबाब इज रियली गुड. Really good. This is for 210 for 2 pieces, half plate. बहुत tasty है. Oh my god, this is, I mean, seriously very good यार. Comment below which of this you are adding to your Pujo food list, and if you love this compilation then make sure to hit like, share, comment and subscribe, and stay tuned for more foodie adventures, because in Kolkata the festival never ends for foodies like us.